اور چوہی غلام حسین کا پوری قوم کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پوری قوم اس وقت پاناما کیس کی بھنور میں پھنس چکی ہے۔ حکمرانوں کا دن رات کا چین ختم ہو چکا ہے، وہ سارا وقت اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرتے پھر رہے ہیں اور ان کے کیا کیا حربے ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ مسٹر جمشید دستی، جن سے ہمارا کوئی ذاتی رابطہ اور واسطہ نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے موت کے منہ سے بچایا ہے اور آج ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور اللہ کرے کہ باقی مخالفوں کے خلاف نواز حکومت انتقامی کارروائیاں کرنے کے منصوبوں پر عمل نہ کرے، اور وہ کیا منصوبے ہیں وہ بعد میں قاضی سعید آپ سے بتائیں گے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب اور حسن صاحب اور طارق شفیع صاحب اور باقیوں کے بیانات کی روشنی میں پاناما کیس اس وقت کہاں جا رہا ہے، اس سے ہم باتیں کریں گے اور بہت بڑی خبریں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جی سعید قاضی صاحب۔ جی حضور، خبریں تو آپ پیش کریں گے، مگر آج جو موٹی موٹی باتیں ہیں، ایک تو صاحب آج کچھ ان یوزلی اپ سیٹ نظر آ رہے تھے، اور میں عام طور پر جب ان کو دیکھ رہا ہوں ایک طویل عرصے سے پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، سیاست پہ تو کم ہی بات کرتے ہیں، آج مگر بہت غصے میں تھے اور بڑے اس لہجے میں بات کی۔ مگر اس سے پہلے حسن نواز صاحب کا بڑا، میں نے پہلی دفعہ انہیں فیس کرتے میڈیا کو سنا ہے، زیادہ ایسٹیوٹ نظر آئے ہیں، مگر اور بڑا ان کا ایک میں دیکھ رہا تھا کہ سیاست سے تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی نپی تلے انداز میں انہوں نے، مگر اس بات پر بڑا اچنبھا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو کہ کیا الزامات ہیں۔ الزامات تو بڑے سادہ اور صاف اور سامنے ہیں، الجھاؤ البتہ بہت زیادہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ آج سب کچھ ہوا، اور اب آپ بتائیں چوہی صاحب، آپ کے پاس کیا خبریں؟ نہیں، پہلے میرا حال اسحاق ڈار سے شروع کر لیتا ہوں۔ ہاں جی، وہ اسحاق ڈار صاحب کی جو کیا اندر کی کیا خبر ہے؟ اس سے شروع کر دوں، پہلے خبر دے دوں۔ ہاں خبر دے دیں تو بہتر ہے۔ جناب وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب بالآخر آج 3 سے 4 بجے تک، یعنی جتنی بھی لوگوں کی پیشیاں ہوئی ہیں، یہ اس میں سب سے کم وقت جو ہے جے آئی ٹی کے سامنے پیش رہے۔ انہیں وزیر داخلہ چوہی نثار علی خان اپنی گاڑی کے اندر بٹھا کے وہاں چھوڑ کے آئے، اور پہلا حصہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پچھلے 4 دن سے مسلسل نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، اور ان کی بے آرامی اس قدر بڑی کہ اس کے باوجود ان کو نیند نہیں آتی رہی۔ ایک یہ خبر دے رہے ہیں آپ؟ جی۔ اچھا۔ نمبر 2، اسحاق ڈار صاحب نے جو باہر آ کے بڑکیں ماری ہے، شعلہ بیانی فرمائی ہے، اور اس کے بعد گالیاں دی ہیں عمران خان اور مخالفوں کو، اور جو منہ میں آیا انہوں نے، یعنی آج ایک نیا ہی رنگ ان کا عمران خان کے حوالے سے جو بلو دی بیلٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کریں ہمیں کیا ہے۔ عمران خان اور اس کی پارٹی اتنی بڑی ہے کہ وہ ان سے خود نبڑ لے گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ خیر نبڑ لیں گے تو جو بھی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ کیا چوہی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تندی اور لڑائی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سفرائی ہو رہی ہے، لڑائیاں۔ اچھا ذرا سن لیں پہلے انہوں نے کہا کیا ہے چوہی صاحب۔ منہ سے عمران خان، کس منہ سے تم 62 کی پٹیشن ڈالتے ہو میاں نواز شریف کے خلاف؟ اپنے گریبان میں جھانکو تو تمہیں نظر آئے گا کہ کیلیفورنیا کا کیس کافی ہے تمہارے لیے۔ یہ ڈرپوک آدمی ہے بیسیکلی، جو آدمی اپنی شادی چھپائے، جب ان کو پوچھے آپ کی جمائمہ سے شادی کدھر ہوئی تھی، آپ کہیں گے پیرس میں، جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں سب کو پتا ہے کہ الیکشن تو جیتنا نہیں ہے، وہ تو اس زمانے میں بھی جب مشرف پیک میں تھا تو ان کی وہ اپنا جوتیاں چاٹتے تھے، وہ یہودی بیوٹی کو لے کے جا کے وزیر اعظم بننے کے چکر میں تھے، کراچی یونیورسٹی میں گئے اور وہاں گندے انڈے کھائے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ انفارچونیٹلی آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا، آپ آج بھی جھوٹے ہیں، آپ آج بھی جاہل ہیں، اب آج بھی جواریے ہیں، اب آج بھی بزدل ہیں، آج آپ بھی ٹیکس چور ہیں، اور آج آپ بھی فطرے کا سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں۔ یار یہ کیسا تماشا ہے کہ جج کے بیٹے کے لیے تو کوئی اور قانون اور پروسیجر، اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے لیے کوئی اور پروسیجر، ان کے بیٹوں کے لیے کیا یہ فیئر ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ فیئر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کو ابھی بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جے آئی ٹی کو ریویو کرنا چاہیے اپنا معاملہ، کہ بجائے مریم نواز شریف کو 5 کو ان پرسن بلانے کے ان کو کوشچنر بھیجا جائے اور ان سے ان کے سوالات کے جواب لیے جائیں۔ بھائی یہ میں کہہ سکتا ہوں مختصر کہ خدا کا خوف کریں۔ قاضی صاحب آپ مجھے ٹوکنا نہیں کہ یہ ایک شخص جو لالا موسیٰ کے نزدیک گاؤں کا جو جن کا جو پیشہ تھا، اگر وہ بیان کروں تو یہ منہ چھپاتے پھرے۔ پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا نہیں،
छोड़ें। नहीं ये तो ना जाके ढोल ये तो फिर वही बात होगी ना जो आबिद शेर अली साहब ने की थी धोबी वाली, ढोल पीटने वाले के लोगों को सहरी के लिए जगाने वाले। ये तो नेकी का काम है चौधरी साहब, अल्लाह ताला बख्शिश का बाइस बन सकता है। और साइकिलों के पंक्चर लगाने और उसके बाद कहना कि जी माई फादर वाज। चौधरी साहब इस मुल्क की मईशत को पंक्चर ना लगाएं, साइकिलों को पंक्चर लगाने वाले तो बड़े मस्कीन लोग हैं और आई लव देम। और आज बिलियंस ऑफ डॉलर के दुबई में जो महल्लात, हाँ वो बताएं हमें, वो किस तरह, वो हमें बताएं, वो बताएं। बाकी मैं एक है आपसे भी कहूंगा, हमें हम मेहनत कशों को हमारे पेशों के नाम से ना ये गाली देना कोई और गाली दे, मगर सवाल ये है गालियां उन्होंने दी है। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जो जुबान, ये तो बड़े डिसेंट आदमी। पहले सुन ले ना, अपनी बहादुरी सुन ले, सुन ले। मैं हतमी रिपोर्ट दे रहा हूँ, कोई इसकी तस्दीक करने की जरूरत नहीं है और ना टामक टोइयां मारे। ये इसहाक डार साहब पेश हुए हैं और सबसे जो हलवा का विटनेस है ना, आज तक जितने गवाह पेश हुए हैं बकौल JIT के अंदरूनी जराए के, मैं जराए को कोट कर रहा हूँ अब डायरेक्टली, ठीक है, कोई हैंकी पैंकी या हेर से वो कतरी बंदों के बयानों का ऊपर ना जाए और इसहाक डार की गालियां नहीं। बाल ये कहा, इसहाक डार वहां पेश हुए और इन्होंने ये कहा है, जो वहां कहा है कि मुझे यानी वादा मुआफ क्या, मेरे से जो करना है, जो करवाना करवा लो, मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दो, इनका जो करना है। साहब बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप, खुदा का वास्ता, इनके रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं, ये कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कह रहा हूं, आप मुल्क में माहौल देखें, जब से ये वहां से निकले 4 बजे और अब यार देखें, आप जो बात कर रहे हैं वो डायमेट्रिकली अपोज टू उनका जो लहजा है, बाहर आके तो उन्होंने जलगार हो के, जब आपके पास अंदर के अंदर तो गालियां बकेंगे ना चौधरी साहब, क्या करेंगे? तो फिर JIT को कहें कि वो टेप्स बाहर ले आए, अगर ले आएंगे आपसे और हमारे से मशवरा से। मैं ये कह रहा हूँ ना, हमें बताएं, दे रहा हूँ, इन्होंने इतना कुछ हैरत है भाई चौधरी साहब, ये हजम नहीं हो रही बात। आपको तो कोई नहीं होती, तो मैंने जो और स्टोरीज की हैं उस वक्त तो हजम नहीं होती, तो उसके बाद क्या? चलो थोड़ा टाइम लग जाता है ना, आजमा हमारा खराब है, मगर मुझे ये बताएं कि बाहर आके अब ये देखिए हुसैन नवाज ऑल द टाइम, अब ये अंग्रेजी आपका ज्यादा अबूर है, ऑल द टाइम मॉपिंग हिज हेड। यार गर्मी बड़ी थी, 35 और JIT के अंदर, अच्छा अंदर, बाहर जो हमने देखा, तो बात ही नहीं कर रहा यार, अंदर तो आप देख लेते, मैं तो नहीं देख सकता अंदर, मेरा कोई मैं नहीं देख रहा था, मैंने ऑथेंटिक जराए को कोट किया है, जिसने चैलेंज आप पे इल्जाम लग जाना है कि आप लीक कर रहे हैं अंदर की बातें चौधरी साहब, पहले तस्वीर लीक हुई थी, अब आप ये लीक कर रहे हैं। JIT की ऑथेंटिक रिपोर्ट दे रहा हूँ, इसहाक डार ने आज बबलू साहब जो थे, अच्छा अब ये होगी खबर, अभी है कुछ, अभी तो बढ़िया खबरें हैं, नहीं इनकी तो बातें। इसहाक डार साहब वहां वो कुछ दे आए हैं कि जिसको उन्होंने कहा हमारा केस में जो कोई लकूना या कमी बेची रह गई थी, आज माशाल्लाह इन्होंने पूरी कर दी है। इसहाक डार उन्होंने बाहर आके कहा है कि मैंने एक रकम, एक पाई जो है रिकंसाइल कर दी है, पूरे कागजात में दे आया हूं और एक इनको कोई सबूत नहीं मिला। मैं कहता वो कहता जितना मैं, अच्छा ये बताएं, इसहाक डार जो सबूत दे आया आज तक नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ किसी और ने नहीं दिए। इनकी ये बाहर जो आके इमरान खान को तकरीर में गालियां दे रहे हैं ना। अच्छा हसन नवाज साहब कह रहे हैं कि जी मुझे इल्जाम तो बता दें, और इस तरह ही वाज ब्रोकन विद इन नो टाइम, और उसी वक्त पसीने अंदर साफ कर रहे थे, ब्लड प्रेशर लो हो गया और उन्होंने कहा जी जाओ तुसी हुण जिन्ना को असीं पुछना पुछ लिया, जो दोबारा जरूरत पई तो बुला लांगे। यार चौधरी साहब मैं तो बिल्कुल फ्लैबरगास्टेड हूँ, ये जो आप कहानियां सुना रहे हैं, एक तरफ से कहते हैं ये कहते हैं यलगार हो हम उड़ा देंगे, एक तरफ से आप अल्लाह के फजल से जितनी कहानियां 98%। मुझे एक बात बताएं, एक तरफ तो कहते हैं जी परसों बंदे लेके आ रहे हैं, लड़ाई का फैसला कर लिया गया है, ये करेंगे वो करेंगे, अंदर जाके ये टूट रहे हैं, ये कोई रिकंसाइल नहीं हो रही बात आपस में जो है वो। भाई आप, मैं कह रहा हूँ वहां उनके पास तो ऑडियो भी रिकॉर्डिंग है, वीडियो भी है, तस्वीरें भी है। अच्छा हसन नवाज का बताएं ना, उन्होंने जो आज बात की बड़े वेल कंपोज थे और एक बड़े मंजे हुए सियासतदान की तरह उन्होंने बात की है। आई वाज रियली इंप्रेस्ड। जरा सुनिए जी, बताइएगा क्या कहा उन्होंने आज। इशू हो रहे हैं, कोई 10-12 समन्स तो हम बहन भाइयों के पास जमा हो चुके हैं, कंप्यूटर पे कट पेस्ट करके, नाम चेंज करके, तारीख चेंज करके, ये जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं। कम से कम इल्ज़ाम भी बता दें कि क्यों समन इशू हो रहे हैं, क्यों पूछगिछ हो रही है, मुझे बरतानिया से बुला के मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इल्ज़ाम तो कोई लगा देना, कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, इल्ज़ाम तो लगाए ना। मसला
हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज से कोई मसला नहीं है। JIT को मसला सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हम नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डालें कि हमारे पास ताकत है आपको, आपके बच्चों को, आपके भाई को बुलाने की, वो चाहिए हमें 100 दफा बुला लेंगे, हम 100 दफा आ जाएंगे, लेकिन झूठ झूठ रहेगा, सच सच रहेगा। चौधरी साहब अब ये मुझे बताएं ना, वो तो कह रहे हैं हमें, मुझे इल्जाम की नहीं पता, आप रोज बुला लेते हैं, रोजाना आप जो है वो भेज रहे हैं, समन भेज रहे हैं फैमिली के मेंबर। सारी रात रोंदी थी, मरिया कोई भी नहीं है। नहीं मतलब तो वो यही कह रहे हैं ना कि मरिया कोई भी नहीं, क्यों रो रहे हैं? क्या इन पे क्या इल्जाम है? यार खुदा का खौफ करें, बात करें सईद काजी। नहीं बताते थे ना क्या इल्जाम? नहीं, इनका क्या केस है? कहते जी मुझे नहीं पता, इनको नहीं पता कि पैसा यहाँ से लूटा है। ये सुन लें, अभी आ गया वो 248 सफ़े थे मोटरवे की करप्शन और 2-4 और केस, वो फाइल मिसिंग थी, वो उनको JIT को वो भी मिल गई। वो कहाँ से मिल गई? वो जो आसिफ करमानी साहब से वो कह रहे थे हमने कागज जमा करवा दिए। आसिफ करमानी साहब के वालिद का जो चमचा करके सईद करमानी साहब को यार आज तो उन्होंने भी बड़ी सख्त गुफ्तगू की है आसिफ करमानी साहब। तो अब गुफ्तगू के अलावा रह क्या गया इनके पास? लेकिन चौधरी साहब मुझे ये बताएं, क्या सीरियसली माजराई का कोई माहौल पैदा हो रहा है? कौन सी माजराई? ये बताएं, सुना है जर्नलिस्टों के खिलाफ, अभी मैं खबर देख रहा था, बोल रहे थे कुछ लोग कि जर्नलिस्टों के खिलाफ कोई भाई कर रहे हैं, जर्नलिस्टों के खिलाफ भी क्या कर रहे हैं? कि जी उनकी हम कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जमशेद दस्ती स्टाइल एक्शन करने, और तुम्हें गंजे को अल्लाह ताला ने नाखन देने ही कोई नहीं, किसका क्या इन्होंने कर लेना है? मैं नहीं समझता इतनी ना आकबत ना अंदेशी करेंगे वो, और यहाँ वाइब्रेंट मीडिया मौजूद है, ताकतवर और बड़ी इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी जो इनसे खुद निबड़ लेगी, ये करते फिर। अगर तो ये समझते हैं कि जिन लोगों ने 4 एक्सटेंशनें लेके और चमचों का रोल अदा कर लिया ना सरकारी मुलाजमों को, उनको शर्म आनी चाहिए, वो रुक जाएं। जो SCCP के झूठ पकड़े गए हैं वो आपके सामने है, बाकियों के साथ भी अशर होगा। ये अच्छा कायदे कानून पर चले। ये जरा करमानी साहब को सुन ले, और बात इसके बाद ये भी करेंगे कि टीम में बदलाव आ गया और पुराने हॉक्स नजर नहीं आ रहे, सिवाय साद रफीक साहब के। दानियाल अजीज साहब न जाने क्या हुए, तलाल चौधरी साहब भी नजर नहीं, क्या उन्हें पीछे कर लिया गया? जी सुनाए जरा, आसिफ करमानी साहब ने भी आज बड़ी धुआंधार गुफ्तगू की है। इस JIT का जो भी इसको तहकीक है, एविडेंस कलेक्शन कह लें, जो भी इनका मैंडेट है, उस वक्त तक इनकी रिपोर्ट नामुकम्मल होगी जब तक कतर के शहजादे जो प्रिंस हैं उनकी तस्दीक, उनका बयान जौन सा है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन जाता। चौधरी साहब ये जो उन्होंने बात की है, रिपोर्ट कैसा नहीं बन जाता, पहले वो आ नहीं रहे, वो कहते हैं सफारत खाने में मैं नहीं आऊँगा, अब कहते हैं आप तशरीफ ले आएँ, ऐन वक्त खत्म होने वाला है। और दूसरी बात ये कुछ खत्म में है क्या? नहीं, नंबर 2 वो इन्होंने कहा चले हम आ जाते हैं, सफारत खाना चूंकि उस मुल्क का हिस्सा समझा जाता है। हाँ। आप सफारत खाने में आ जाए, वहाँ गवर्नमेंट भी तो नवाज शरीफ की है ना, सफीर भी उन्हीं का है, चमचा एक लगाया हुआ है जी, चले जो उधर आ जाओ। ठीक है, तो कहते जी मैं उधर भी नहीं आता, मैं अपने माल में। और भाई इसने JIT जो सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है, PTI ये वहाँ उनके हाजुर पेश होना है, और भाई ये गवाह है नवाज शरीफ एंड फैमिली का। चौधरी साहब वो ये कह रहे हैं कि नून लीग के तहफुजात हैं, कारकुन सड़कों पे निकल आएंगे, और कहां से कहां, कराची से ना जाने कौन सा वो राजकुमारी क्या कहते हैं, हाँ। पता नहीं, कराची से कश्मीर तक जो है लोग बाहर निकलेंगे। क्या माजराई और लड़ाई हो रही है? और इमरान खान ने भी क्या रखा है कि हम भी आएंगे पहले। ये इनका गवाह है कौन? जो शहजादा है ना कतरी, हाँ। वो नवाज शरीफ फैमिली का गवाह है कि जी हमारा उधर हमारे मियाँ शरीफ मरहूम ने इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने हमें फ्लैटों की शक्ल में पैसे दे दिए, तो वो आके वो सबूत, तो उस कारोबार का भी आपको तो भाई गवाह लेके आना इनका काम है। मैं आपको बात ये गवाह तो आप भी लेके आएंगे ना, नहीं आएंगे तो ये JIT का काम है कि गवाहों के पीछे भागे हैं। नहीं जाहिर है गवाह तो उन्हें लेके आना पड़ेगा ना, अगर जो ओनस इन पे आ गया, अगर ओनस इन पे आ गया तो इनका केस खत्म हो चुका है। मैं आपको साफ बता, लेकिन चौधरी साहब मुझे आज मैं आपकी वसातत से नाजरीन और इनकी एजेंसियों वाले और ये जो बाहर बमपुल लगे हुए थे और पसीने साफ कर रहे थे, अंदर कितना साफ किया वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा साग डार ने जितनी हमें मदद चाहिए थी उससे कई गुना ज्यादा कर दी है, लिहाजा वो अपने घर खुश, हम अपने घर। वो तो कहता है दैट पॉसिबल, वो उनके समधी भी हैं, ही इज उनका सबसे इंपॉर्टेंट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनको समझा जाता है, तो डू यू थिंक ही वुड डिच नवाज शरीफ साहब? क्या है ये? अब यार डिच कर चुका है, वो दे आया बयान 3 से 4, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हमने डिस्कस करना है कि नवाज शरीफ साहब का होने क्या जा रहा है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ये लोग चलेगा ना? चलेगा यार, just go for it. Whoa, dude. इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे। अगर करप्शन की होती तो 10 साल जो परवेज मुशर्रफ की टीम है वो लाकर सबूत इनको दे देती। हमने किसी को नहीं रोका था। 1 रुपए की भी करप्शन शरीफ खानदान पर किकबैक की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, हम हर चीज का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं। कि कैलिफोर्निया का केस काफी है तुम्हारे लिए। ये डरपोक आदमी है बेसिकली, जो आदमी अपनी शादी छुपाए। जब इनको पूछे आपकी जमाना से शादी किधर हुई थी, आपने पेरिस में, झूठ बोल रहा है।
ڈار صاحب کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی الفاظ، اس قسم کی لہجہ، اس قسم کی گفتگو، کسی کو کچھ، اور ان کی گفتگو سے تو یہ لگتا تھا کہ جیسے ان کا احتساب عمران خان کر رہا ہے۔ کوئی آ کے رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی آ کے آل فال بکنا شروع کر دیتا ہے، کوئی آ کے دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تو ان میں سے کسی کو برین ہیمریج ہو گیا تو خام خواہ ہمارے ذمہ لگیں گے۔ سرکاری پارٹی کے وزراء نے جے آئی ٹی کے بننے پر مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کی۔ ہم نے تو مٹھائیاں تقسیم نہیں کی، یہ مٹھائیاں تو آپ تقسیم کر رہے تھے، تو آج آپ کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیں۔ ویلکم بیک جی قاضی صاحب۔ میں ایک بات تو یہ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ایک میں ضرور بات کروں گا کہ عمران خان جب بھی بات کرتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرا کوئی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، مگر جو نجی زندگی کے معاملات ہیں اس پہ میں نے نہیں دیکھا عمران خان کرپشن کی ضرور بات کی، بعض اوقات اس کے لہجہ آپ کہہ سکتے ہیں قابل اعتراض ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کرپشن کی بات کی ہے، مگر اس کی فیملی کی بات اور وہ باتیں کرنا میرے خیال میں۔ مگر ایک اور بات میں ضرور کہوں گا عابد شیر علی صاحب کے حوالے سے، عابد شیر علی صاحب کے حوالے سے اس ملک کے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں خبر چھپی، نہ کسی نے تردید دی، نہ کسی نے اس پہ مقدمہ کیا کہ میپکو کی ایک میٹنگ میں 600 ملین روپے کا ایک ڈیفالٹر جو ہے وہ آفیشیل میٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دیر wasn't a single word on that۔ میں سمجھتا ہوں قوم انتظار کر رہی ہوگی انہیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور چوہی صاحب ابھی کچھ خبر ہے یا میں کچھ بات کو آگے بڑھوں؟ خبریں تو بڑی کریں گے۔ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ذرا بات آپ کو پسند نہیں آئے گی، میں اس لیے پیش کی آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ یہ ساری قوم کو ہم نے پاناما کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ جس دن سے ٹینکر گرا ہے اور نہ جانے 160 لوگ اس میں جل کے مر گئے ہیں، اس کے بعد 2 ٹینکر اور گر چکے ہیں، ڈولی لفٹ گر چکی ہے، کل جو ہے ایک وین کو آگ لگی، ایک خاندان کے 6 لوگ مر گئے، اور یہ آسمان سے ہاتھ سے نہیں اتر رہے، نیچے سے آ رہے ہیں، ریگولیٹر کہیں نہیں ہے، ساری منسٹریاں لگے ہوئے ہیں پاناما کے دفاع میں، صحافت بھی پاناما میں لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں جانتا عام آدمی کی زندگی کیسی ہے، ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، کون سی گاڑیاں چل رہی ہیں، موت کی وہیکلز ہیں جس پہ لوگ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کیوں ٹرک الٹا تھا؟ وہ اس لیے الٹا تھا کہ وہ 14 ویلر تھا، اس کو 22 ویلر ہونا چاہیے تھا، اس کے 6 ایکسل ہونے چاہیے تھے۔ یعنی پبلک ڈیلیوری کا یہ عالم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ایشیا میں ایکسیڈنٹس میں پاکستان نمبر 1 ہے، مگر مجھے پاناما سے نجات ملے گی تو میں بتاؤں گا نا۔ کون کرے گا چوہی صاحب؟ یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس خبریں ہیں، میں پورا پروگرام اس پہ کر سکتا ہوں کہ آئے روز جو ہے وقت سے پہلے لوگ موت کے گھاٹ محنت کا شکر ہے۔ Nobody talks about them۔ نہیں تو پاناما یہ ترقی کا سفر ہے، یہ ترقی کا سفر ہے۔ آپ کی بات کریں آپ، کریں نہیں، یہ سارا کوئی پاناما کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یار اب کیا ہوتی ہے صحافت؟ لگے ہوئے ہیں رولنگ ایلیٹ کی آپس کی لڑائی لگی ہوئی ہے آپس میں، پتہ نہیں کیا حصہ اور کیا نہیں ہے، کرپشن۔ نہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ وزیر، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، عدالت سے فیصلہ لیں اور بند کریں یہ ڈرامے جو باہر آ کے کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا بھائی، یہ دکھائے نا یہ مٹھائیاں جو بانٹ رہے تھے ان کا نہیں دکھایا، اور عمران خان یہی پوچھا نا مٹھائیوں کیوں بانٹ رہے تھے؟ پھر ان کی تکلیف ہے جے آئی ٹی نے، ان کا تو خیال وہ تو ہوگی نا۔ اس وقت وہ فتح کے شادیانے بجا رہے تھے، وہ ایسے کر رہے تھے، پتہ نہیں اس کا مطلب وکٹری ہوتا ہے یا 2 نمبر ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، بہرحال وہ ایسے کر رہے تھے۔ جب جس دن یہ 20 کو میرے ساتھ تھے نا آپ، ہم کہاں تھے؟ یہ دیکھ لیں، ہاں یہ سارے جو کر رہے تھے تو ہون کی تکلیف ہے، یہ ہے ہون پیسے ونڈ رہے یار، اتنا بڑا فیصلہ تب پڑھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ نہیں، ہون پیسے ونڈ دے جے کہ بندے آ جان ٹرک بساں چ پنڈی دے ارد گرد جننے علاقے نے، اور ایم این اے نو کیا اتنے پہنچو، اور عورتوں کیا ہے، اور ساری کہ جی وہ مریم صاحب آ رہی ہیں تو وہاں آپ کی حاضری لگنی ہے تو ان کو بلا رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں نہ اپوزیشن کو کوئی کام ہے، نہ وزیروں کو کوئی کام ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، سارے باہر کھڑے ہیں، پاناما ہم یہ کر دیں گے، ہم نے بڑی خدمت کی ہے اور کب سے خدمت کر رہے ہیں، جمہوریت ڈیریل ہو رہی ہے، اور بندے مارے ہیں۔ آپ تو بہت یعنی سمجھتے ہیں نا انٹلیکچولی بڑے ساؤنڈ ہیں۔ It's not intellectual, it's matter of people's life۔ یار میں کوئی اور بات کر رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ سن لیا کریں بھائی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یک وقت حکومت میں بھی ہو سکتے ہیں اور ایجیٹیشن بھی کر سکتے ہیں، یہ کہیں سنا ہے؟ یہ دیکھیں، اگر تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا جس طرح آپ نے خبر دی ہے کہ یہ لوگوں کو، صحافیوں کو اس موقع پہ ہاں اگر کسی نے آپ ایفیڈیوٹ دکھائیں جو یہ وہاں حدیبیہ پیپر والے معاملے میں چیئرمین نیب کو اس نے ہاتھ میں لکھا ہے، یہ ہے وہ کاغذ، کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ آج ٹریش کیا کہ گئے ہیں اس کو، آپ کہتے ہیں اندر کنفا ہیں، انہوں نے باہر آ کے کہا کہ پیس ٹریش۔ میں کہتا ہوں اس حقدار کو لائیں اور کہے کہ وہاں جو ان کو چاہیے تھا یہ دے آیا، یعنی ہاتھ رکھ کے نا دل پر، اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔
جی کہ بتائے آ کے کہ اندر کیا بات نہیں تو پھر وہ اندر ہنستے اگر if I for a moment میں بلیو کروں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہنستے ہوں گے یا وہ ان کو بھی پتہ ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں کیا کہانی کیا ہے پھر؟ نہیں جے آئی ٹی تو اتنی خوش ہے ان کی پیشی کے بعد وہ کہتے ہیں جتنا ہمارے پاس ایویڈنس چاہیے تھا اسحاق ڈار صاحب پرووائڈ کر گئے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے اور بھی جو مجھے چاہیے میرے سے لے لیں صرف مجھے میری خاندان کو بچوں کو یار پہلی بات تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان کے اور ان کے بچوں کو امپیونٹی جے آئی ٹی نہیں دے سکتی وہ دے سکتی کہ نہیں میں بات وہ تو نہیں ان سے کیوں مانگ رہے ہیں پھر وہ نہیں تو کیس اگر بن جائے گا اگر امپیونٹی بھائی ان کے پاس تو ہر طرح کا میٹر جا رہا ہے نا جے آئی ٹی کے پاس نہیں جے آئی ٹی کے پاس ہر طرح کا میٹر جا رہا ہے یہ امپیونٹی یا تو وہ سپریم کورٹ سے اگر مجھے نہیں پتا قانونی طور پر مانگ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا یا سی او ڈی ہوتے رہے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے گپلے ہوتے رہے یہاں پہ این آر اوز ہوتے رہے ہیں وہ عدالت نے تو نہیں اس کا سکوپ جو ہے نا آپ اگر یاد کریں ججمنٹ کو 20 اپریل 2:15 بجے جو اناؤنس ہوئی تھی اس میں یہ ہے کہ یہ 13 سوال اور اس کے علاوہ بھی جو معاملات ہیں ان کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اچھا وہ معاملات نہیں ٹیک اپ تو کر سکتے ہیں بٹ وہ ڈیسیژن تو کوئی نہیں لے سکتے نا نہیں حسن نواز کی ابھی ہمارے پاس تفصیلات نہیں اسحاق ڈار مٹیریل وٹنس تھے اور وہ نواز شریف اور ان کے خاندان کی مدد کرنے کی بجائے جے آئی ٹی اور ججز کی مدد کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں باہر آ کے کھسیانی بلی کھمبا لوچے اور آ کے گالیاں دے کے عمران خان کی شادی اب پیرس میں نہیں ہوئی پاکستان میں ہوئی ہے پاکستان میں ہوئی سمندر میں ہوئی سمندر میں نہیں ہوئی پہاڑ پائی بھائی ہو گئی ختم ہو گئی ان کے 2 بچے دیکھیں چوئی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک پائی اور پیسہ خدا اور خدا کے رسول کی امانت تھی اور انہوں نے بڑے مذہبی حوالے دیے ہیں آج بڑے مذہبی حوالے اگر ہمیں سنا سکیں تو حضور یہ تو آپ کی کہانی تو مجھے ہضم نہیں ہو رہی آپ کو اوتھینٹک ورژن دے رہا ہوں بھائی جان چلیں ٹھیک ہے بھائی آپ پبلک اور وہ تو کہتے ہیں میرا اندر وہ کہہ کے آگے کہ جی میرے تو دستخط ہی کوئی نہیں تو وہاں لے گئے انڈر سائنڈ اپنے ہاتھ رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ تھے چیئرمین نیب کو بھی لکھا ہوا ہے عدالت کو بھی لکھا ہوا ہے باہر آ کے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ جہاں سائن کر دو اس وقت بڑا مشکل وقت ہے اور ایک مسلمان جو ہے وہ کیا وہ کچھ اس طرح کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ بعض اوقات کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے یہ نہیں وہ ایک ہے نا کہ بعض نہیں یہ خنزیر کا انہوں نے نعوذ باللہ نہیں کہا میں یہ نہیں کہتا لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ بھی کر سکتا ہے انسان کی جب زندگی پہ بن جائے تو کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے کیڑی زندگی بنی سی انہوں نے کہا میں باقاعدگی ہوش و بات آپ یہ کاغذ پڑھیں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یہ کہتے ہیں نا میرے سے زبردستی دستخط کرائے بھائی یہ 34 صفحے کس نے زبردستی کروایا یار قاضی صاحب میں شاہی قلعے میں رہا ہوں ہمیں وہ کہتے ہیں جو ایکچوئل بات ہے وہ کریں بھائی ہم کہتے ہیں ہماری جان چھوٹے یار تشدد میں ایک قبر جیسی جگہ ہے وہ جاسوسوں وغیرہ کے لیے ہوتی ہے اصل میں سیاسی مخالفوں پر تو انتقامی کارروائی کے طور پر یہ ہو رہا ہے جیسے یہ جمشید دستی نہیں کہہ رہا کہ سانپ چھوڑ دیے بچو چھوڑ دیے اچھا جو صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں یہ بات لمبی ہو رہی ہے مجھے یہ بتائیں نہیں بریک کے بعد آپ کی بات سنتے ہیں اور آگ ڈار آج جو ایویڈنس دیا ہے اس کے بعد نون لیگ کا کیا کیس رہ گیا یہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک گرمیوں کی مستی اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD تجربہ بھی سوچ وچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये ज्यादा डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं। जरा सुने पहले कैसे थे और अब क्या कह रहे हैं, जरा देखते हैं। करने वाला कोई भी हो, गौर से सुन लो। तज़हीक करने की कोशिश करने वाला कोई भी हो, इसका हक नहीं देंगे। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नज़र नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें। तज़हीक न करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। नवाज शरीफ किसी कमज़ोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। हम अदारों का एहतराम करते हैं। अगर अदारों का एहतराम नहीं किया जाएगा, अगर अदारों के फैसले नहीं माने जाएंगे, पाकिस्तान खुदा ना खास्ता सरजमीन बेआइन बन सकता है। ये नहीं होगा इस मुल्क। हमारे ऊपर से रोड रूलर गुजार दें, पाकिस्तान में आइन को सरनगू नहीं होने देंगे। हमारे ऊपर से रोड रूलर गुजार दें, अदारों के एहतराम में कमी नहीं आएगी।
जो एक तरफा टॉक शोज करते हैं, गालियां देते हैं और समझते हैं बहुत पॉपुलर है, और इनसे और भी बहुत ऐसा नहीं है। और जो सहाफी सच की बात करे उस पर लिफाफे का इल्जाम लगा दो, जो जर्नलिस्ट जमीर की आवाज बुलंद करे उसका नाटका बंद कर दो, जो मीडिया चैनल जमहूरियत की हिमायत करे उस पर गद्दारी का टाइटल लगा दो, जो अहले कलम ऐसे अहले कलम भी हैं जो हमारे तर्ज हुक्मरानी के नाकद हैं लेकिन असूलों के ऊपर सपोर्ट करते हैं, उनको गालियां दो ताकि वो अपना किबला दुरुस्त करें उन लोगों के मुताबिक जो समझते हैं कि गाली देना सहाफत या सियासत है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितनी गालियां 2013 के इलेक्शन में पड़ी थी, इंतखाब के नतीजे और होते। पाकिस्तान के वोटर को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जैसे आप गालियां और जो जुगते हैं, ये तो मेरे ख्याल में सहाफत पे और भी बड़े इल्ज़ाम लग सकते हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि हम सारे पाक साहब नहाए धुले हैं, लेकिन ये कि जो गालियों का कल्चर आया असम्बली में हमने देखा, हमने पहले ख्वाजा आसिफ साहब को देखा, फिर उन्होंने खुद माफ़ी भी मांगी इस बात पे, फिर इसके बाद ये जो हो रहा है कसाई ये सारी बातें, ये सारी फ्रेजियालॉजी, ये टर्मिनोलॉजी मेरे ख्याल में सहाफत तो नहीं लेके आई। दूसरी बात ये कि जो इनका पहला बयान था 2 दिन पहले जब आए तो मुझे लगा जैसे कोई उसमें नरमी है या ज़्यादा एक पार्लिमानी गुफ्तगू थी, इसमें कभी तुंदी आती है, कभी इसमें कैसे हाउ डू यू रीड दिस बॉडी लैंग्वेज चौधरी साहब? सर ये हारे हुए ज्वारी हैं, शिकस्त खुद यानी फोर्स है, और जिनका यानी लीडर जो है वो करप्शन और बदनवानी और लूटमार सुना है बहुत आ रहा है, ट्वीट भी बड़े लोग कर रहे हैं, इंटरनेशनल या लोकल, यानी अमेरिका आ रहा है, चीन आ रहा है, हिंद आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं ये, इंशाल्लाह ताला ये अंजाम को पहुंचने हैं और बड़ी वेरी सून, और देयर ऑन दी रन। कोई अमेरिकन, कोई दूसरा मुल्क, मैं नहीं इसमें पढ़ना चाहता, वो एक वफद आया हुआ है, वो पहले से दौरा तय था, और वो जॉन मैकेन जो है वो वैसे भी ऑपोजिशन का है। नहीं, क्या ट्रंप इतना इंटरेस्टेड होगा कि इतने हमारे मुल्क में जो है वो करे? मुझे तो नहीं लगता। वो आप अपने उसकी तो अपने बड़े मुश्किल है। वो उनका एक ही कंसर्न होता कि नेकेड ब्लेटेंट मिलिट्री टेक ओवर ना हो। उसका आज सुन ले, चांस नहीं है। अभी मुझे तहरीक इंसाफ के आला तरीन ज़राए ने कंफर्म किया है कि ये जो नवंबर 2 का धरना था, जिस वक्त परवेज खटक वज़ीर आला केपी बड़ा जुलूस लेके पंजाब की तरफ बढ़ रहा था, और पंजाब के आईजी वहाँ उनके ऊपर शेलिंग करा रहे थे और फायरिंग कराने लगे थे, और उन्होंने कॉल ऑफ किया। अगर वहाँ कॉल ऑफ ना किया जाता तो फौज टेक ओवर करने वाली थी। इमरान खान के हवाले से उनके ज़राए ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते थे कि फौज टेक ओवर करे, इसलिए हमने उस वक्त कॉल ऑफ किया और अदालत का रुख किया। ये है वो बात, नहीं है, ये है फर्क, कोई ऐसा काम ये है फर्क। ये कुछ उनके बारे में कह रहे हैं, ये मैं आपको हल्फिया बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली, कि उन्होंने मुझे कहा कि हम मुल्क को फौज के हवाले नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे जमहूरियत चले। अब जब के इलेक्शन थोड़ी दूर है और हम एक ताकत और पॉपुलर फोर्स है, हम नहीं चाहते थे कि फौज में मुदाखलत करे। अच्छा, इसीलिए इंटरनेशनल फोर्सेस भी कोई मुदाखलत नहीं करेंगी। वो कहते जब आप जमहूरियत चल रही है और अदालतें काम कर रही हैं, और अगर अदालतों के जरिए सईद चाहे काजी या गुलाम हुसैन इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं, तो उसमें किसी को कोई क्या मरोड़ उठ रहा है, ये बात। अच्छा, ये बात। दूसरी बात ये कि अभी और भी तब्दीली नहीं आई चौधरी साहब के। पहले हम देखते हैं कि PMLN की C टीम कह लें या B टीम कह लें, वो आगे थी मीडिया में और अदालत के बाहर और हर पेशी के बाद। अब इसाक डार साहब भी आ गए हैं और साथ रफीक साहब को शायद ये तफवीज़ किया गया है कि अब वो जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये कोई बदली स्ट्रेटजी? और आने वाले दिनों में अभी आपने एक और बात की थी जो उसको उसकी तरफ वजाहत फरमाएं, तो इधर से PTI ने भी कह रखा है कि जी हम भी अपने वर्कर्स को जो है इमरान खान साहब, अगर मुझे मेरा ख्याल है उन्होंने कहा यकीनन, तो ये क्या कोई महाजराई? 3 चीजें। तो मैंने कहा कि हम फौज को बार बरसे इक़दार नहीं लाना, ये तो हो गया ना, अब महाजराई बन रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ JIT और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जजेस और रियासती इदारे यानी मुसल्लह फौज, इनके ऊपर हमला जो भी करेगा, इनके खिलाफ हम जजों के और JIT के साथ खड़े होंगे। अगर इमरान खान कह रहे हैं ना, और हमें जरूरत पड़ी तो हमने लोगों को कॉल दी हुई 1 घंटे के नोटिस पर, जितने बंदे चाहिए होंगे हर शहर से निकाल लेंगे और ये मुंह छुपाते रहेंगे। साहब तो ज्यादा एतराज आ रहा है मुस्लिम लीग की तरफ से, वो मुहतरमा मरीम नवाज साहिबा की तरफ, और आज उन्होंने बड़ी कहा कि अदालत को खास की है, डाक आपने जी रोका जाए,
मुझे पता होता तो मैं दिखाता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, पुलिस वाले रुथलेसली जो है औरतों को इतना जो हशर कर रहे थे। दिखाएं जी वो, अगर दिखा सकते हैं आप। कैप्टन सफदर ने ये मरियम साहबा को वो बुलाना नहीं चाहते थे, माफ करना। हाँ, ये कहानी आप पहले मुझे सुना चुके हैं चौधरी साहब कि क्या उन्होंने कहा कि उनसे पूछें। हाँ, उन्होंने कहा मेरी बीवी है लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, 10 मरले का मकान है। तो उन्होंने कहा $10 मिलियन की चोरियों में जो शामिल है तो उसका आपके पास कुछ नहीं है। हालांकि वो भी गलत है। ग्वादर में 5000 एकड़ किसने लिए है? क्या ये कैप्टन सफदर साहब के नाम है? 5000 एकड़। 5000 एकड़ नहीं तो क्या खरीद फरमाई है इन्होंने या नहीं? जो भी है, कोई अलॉटमेंट औने पौने कराई है, वो मैं कागजात मंगवा रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी जवाब देना चाहिए। और ये कहते हैं ये एक देले की करप्शन नहीं है। और आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, ये मुझे बताएं कि कल हुसैन नवाज साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और ये जाहिर है फिर उसके बाद मोहतरमा कलसूम नवाज साहब तो नहीं आ रही मेरे ख्याल में, उनको कोई ऐसा अभी उनको वो कहते हैं जो सागडार साहब ने कर दिया। और अब इनसे जो आपके कहने का मकसद ये है, जो आप स्टोरी दे रहे हैं कि जो सफदर साहब ने अनफिनिश्ड या अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़े हैं उसके ज़िम्मन में, वरना वो मरियम साहिबा को बुलाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। और नहीं, वो जो था ना रिस्पोंडेंट नंबर 6, ये है ना मरियम। हाँ, ये ना आप, इसलिए उनको बुलाना जरूरी था ना, अदालत का हुक्म है। नहीं, अदालत का हुक्म है। इससे पहले आप स्टोरी दे चुके हैं कि उन्होंने नहीं, पहले उनका ख्याल था कि खवातीन को हम ना बुलाए। फिर ये कैसे, व्हाट नेसेसिटी? ये कैप्टन सफदर के बयान है। यही बात मैं भी कह रहा हूँ, आपने ये और कैप्टन सफदर हुसैन नवाज। अब चौधरी साहब, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या दोनों पार्टियां अगर फैसला आता है ए के हक में या बी के हक में या ए के खिलाफ या बी के खिलाफ, तो ये करने क्या जा रहे हैं? ये तमाशा क्या देखना है हमने? क्या ये बात जो पोडियम पे खड़े हो के जो माशाल्लाह ये तमाम जो कागजी भी और असली शेर जो हैं लगे रहते हैं, ये मैदान में उतरेंगे? क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे, मुआज़री जारी रहेगी। उसके बाद नवाज शरीफ जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होगी और उनको हुकूमत से बरतिया जाएगा और मुकदमों का वो सामना करेंगे, तो वे ये इस पर बात करते हैं ज़रा तफसील में आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। वेलकम बैक जी काजी साहब। 2-3 खबरें हैं, अब 2-3 खबरें। आपने ये तो देख लिया ना, इनके मुंह पर जूत पड़ गया ना कि यार आप तो मार्शल्ला जो है रुकवाने वालों में। चलें ठीक है, वो आप इमरान खान के आप फैन ही बहुत बड़े हैं, मैं क्या करूं? नहीं, फैन की अलग बात है। हाँ है ना, फैन तो है ना। बात ये है हमने खबर देनी होती है। अच्छा मैं ये अच्छा खबरों की बात, एक तो माहीन फातिमा का जो बयान है ये आप वो देखें। अच्छा 2-3 बातें मैं अर्ज कर दूं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो घपला हुआ है, जो बदतमीजी हुई है, जो बेहूदगी हुई है और वो कहते हैं थोड़ी सी ओमिशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। JIT ने रिपोर्ट दी। यहाँ एक ग्रोह जो है जर्नलिस्ट के नाम पर जो मुसल्लत है मुल्क में, हम किसी का नाम नहीं लेना क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है, उन्होंने उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। सुना है वो कह रही है मुझे बड़ा उन्होंने डराया है। तो उसको डराया है, गिलगित जिसमें गिलगित भेज देंगे तुम्हें, ये गिलगित पर फिजा मकाम है पूरा वक्त। ये मैं कहता हूँ अभी तक ये बाज नहीं आ रहे इंतकामी कार्रवाइयों से। शर्म आनी चाहिए। एक बात ये और 2-3 बातें करनी है, जो सेगमेंट छोटा है साहब। एक और दूसरा ये कि ये जो डॉक्टर आसिम ने जो कहा है वो भी यानी जो मर्जी उनको कह रहे हैं आप, उन्होंने कहा भाई हमारी जो JIT है हम तो जेलों में पड़े रहते हैं और ये महल्लों में हैं, ये महल्लों में करते हैं। एक तो ये बात उनकी बिल्कुल बजा है। तो ये भी ये सिंध वाले हमेशा ये हमारी माँ बहनों को क्यों नहीं रोका था? जरा सुने वो क्या कह रहे हैं, सुनाए जी। शोर क्यों कर रहे हैं? शराफत से आए, हमें शराफत से कोर्टों में भी आते हैं।
अंदर जेल भी रहते हैं। हमारी तो GIT हुई, जेल में रह गए, उनकी GIT हो रही है महलों में रह के। जी चौधरी साहब वो कह रहे महलों में रह के आपकी GIT की बात। मुस्तफा कमाल ने भी बयान दिया है, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा पहले ये करप्ट हुक्मरानों से जान छुड़वाएं, फिर दहशतगर्दी खत्म होगी। और ये चले ये तो बात है, मगर सबसे पहले लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ से कहा, ये मैं समझता हूँ कि भाई अच्छा मुस्तफा कमाल साहब भी कुछ कह रहे हैं। ये ऑपरेशन तो बाजवा साहब आपसे मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि बंद करें ये रद्दुल फसाद, बंद करें ये रद्दुल फसाद, बंद करें ये ऑपरेशन। ये कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये हुक्मरान दहशतगर्द बना रहे हैं, ये हुक्मरान पूरे मुल्क को दहशतगर्द बना रहे हैं। आप नहीं मार सकते पूरे मुल्क को। पहले अगर आप इन हुक्मरानों को ठीक नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में हम बंद करा देते हैं रद्दुल फसाद, तो फिर इस तरह करें कि जो मिलिटेंट विंग्स हैं पार्टियों के वो भी बंद कर दें। तो इस सब क्या ख्याल है? मतलब ये जहाँ जो कुछ हो रहा है, ये बड़ा अहम बयान है। वैसे नहीं, बयान तो उनका बड़ा है कमाल। मैं फौरी तौर पर ये सियासत को जब से कब्जे की सियासत बनाया हमने, इधर भी ठीक कह रहे हैं आप, सही कहा। मैंने आज खबर एक नहीं छोड़नी आपसे, आज जो मियां साहब का दौरा, अब ये आज उन्होंने साहिवाल कोल प्लांट जो है ना, वो जो शहबाज शरीफ की बड़ी हरकुलिन एफर्ट से कई प्रोजेक्ट चले हैं और बिजली दे रहे हैं, और अब आपने देखा कि लोड शेडिंग भी कम हुई है वज़ीर आला पंजाब की। ये इस क्रेडिट की मैं हमेशा तारीफ करूंगा। लेकिन आज उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने ओपनिंग करनी थी एक और उसके यूनिट की। चौधरी साहब क्या अब 9,000 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तनख्वाहें कर रहे हैं लोगों की 9,000, वो गए ही नहीं है वज़ीर आज़म साहब। उनकी तबीयत खराब हो गई, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर गया। अच्छा, तो दूसरी तरफ उन्होंने इसहाक डार साहब कहते कि जी मेरी तो हालत बड़ी पतली है। उन्होंने कहा नहीं डार साहब जाओ तुसी, मैं तेरे इत्थे बैठा हुआ, मैं नहीं जा रहा साहिवाल। अच्छा, नहीं उन्होंने डार साहब को भेजने की कोशिश की ना, वो उसको मॉरल सपोर्ट दी और खुद भी अपनी भी तबीयत खराब थी। मैं कह रहा हूँ ना 4 दिन वो दूसरे साहब जो है ना गोलियां खाते रहे, हालत बड़ी पतली है। होन जे रहे थे मन्ना चौधरी साहब, अब आप तो ना आप तो अपने वो दिल के फफोले हैं आपके चौधरी साहब। मगर मुझे ये बताएं, क्या फफोले? मुझे ये बताएं कि एक खबर दे रहा हूँ, एक मुलाकात भी हुई है, एक बड़ी तवील मुलाकात हुई निसार अली खान साहब की। आप वो आए लाहौर, वहाँ गाड़ियाँ तफसील नहीं पता चल सकी कुछ। वो हम पहले देख लें, 2 ही है कि हम नवाज शरीफ को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। वजीर आजम के तौर पर वो इलेक्शन तक चले जाएं किसी तरह बचा के। जैसे आपके वो दानिश्वर दोस्त भी हमें फोन कर रहे थे। कौन से? एक। अच्छा, हाँ चलो नाम ले। ठीक है, तो दूसरा ये कि अगर वो नहीं बचते तो फिर हमारा कुछ बचता है कि नहीं बचता, बस ये दोनों। लेकिन चौधरी साहब मैं तो सिर्फ एक, क्या इस सारे खेल में इस मुल्क के अप्रेस्ड और पिसे हुए अवाम का कुछ निकलेगा? ये मैं मुझे तो नहीं लगता कुछ निकलेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप वो वही उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, उसी तरह इन्फ्लेशन होगी, उसी तरह उनके बच्चे मरते रहेंगे एक्सीडेंट्स में। कोई रेगुलेटर्स नहीं है, कोई रोला ही नहीं है। मतलब है कि ये कर गए लूज। नवाज शरीफ पहला राउंड भी, दूसरा भी, तीसरा भी और आखिरी राउंड चल रहा है। उनकी कोशिश है, कल हमने 5 नुक्ते देने हैं कि ये क्या अब करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं चौधरी साहब, ये बताएं 9,000 रुपये में कोई इंसान घर का बजट बना सकता है? आज हमने फिर हातम ताई के का मकबरा डिमॉलिश कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, और 9,000 कर दिए ग्रेड 1 की तनख्वाह। मुझे आप बताएं यार, ग्रेड 9,000 में जहाँ पे नहीं तो मिनिमम वेज जो 16 रखी हुई है, तो फिर छोड़े 5 नहीं मिलती, 16 मिलती है। कोई पार्टी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और ये जो 9,000 रुपये वाले और 5,000 रुपये वाले हैं, न जाने कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। हम रोज़ ऊपर पनामा खेल के चले जाते हैं। बहरहाल चलें, ये सिलसिला तो जारी रहेगा। मगर क्लोजिंग का शायद वक्त हो गया चौधरी साहब। नहीं, क्लोजिंग हुई है कि नहीं, इनका टाइम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे ये बताएं। ये तो अल्लाह जानता है, हमारा काम नहीं है। क्लोजिंग है, कल हमने एक बहुत अहम खबर देनी है, लेकिन आप वक्त नहीं, क्योंकि कल तक रखते हैं। ठीक है नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।